Hello my dear students, welcome to social studies class. See students, as we have not done social lessons since a long time, I'll be sending you two videos back to back, that is of civics lesson number 6 and geography lesson number 6 children. Two lessons I'll be sending you together, two lesson notes also I'll be sending you together. So you have to go through the video and write down the notes. I'll be giving you the dates when to complete it. As if you all are not completing also whatever is given till now. I have come to know, as the school has started, few students I came to know when I'm interacting with them, I came to know that many students are not writing also. No problem, but we expect and we hope that you complete your notes on time children. And please go through the video, and whenever you are going through this video, you can go through the video n number of times, means any time you can go through this video, but you keep your textbook open. So this is geography lesson number 6 and it is page 168. So the name of the lesson is land and sea topography. Now what is the meaning of topography? Topography means the natural features, or the what we say, whatever we see on the land or whatever we see on the ocean floor, like the mountains, plateaus, plains, that is called as what? Topography. मतलब land के जो natural features होते हैं उसको बोलते हैं topography. So this will study what are the major landforms. मतलब landforms मतलब land के अलग अलग फॉर्म्स आपको अलग अलग दिखाई देंगे. कहीं पर आपको माउंटेन दिखाई देगा, कहीं पर आपको प्लेटो दिखाई देगा. कैसे ये पॉसिबल है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द internal processes which are going on below the earth's crust, as I have explained you in geography lesson number 5, crust, mantle and core. Then we'll study about the topography of ocean floor. See, below the ocean also, below the water of the ocean also, there is a floor, there is a land which is called as ocean floor. And lastly, we will learn about topography and man, means how we are dealing with this natural features of the land, how we are using it, or how we are misusing it, and what benefits do we get from these plateaus, mountains, plains, what are the advantages which we get, or what are the disadvantages, and how the man is using this topography. This all we'll study in this lesson. Here is a gear up box. Gear up box means the activity box. Here you have to match the following. It is very easy for you children. The first picture is of, yes, volcano. Second is of what? Mountain. Correct. Third is of what? River. Fourth is of plain region, means the fertile land, plain land. And the fifth is of what? Desert region. So this you can write down here the names in your textbook, page 168. Here one more picture you can see. Here is what? Landforms. What are the different types of landforms on the earth? You can see here there is a mountain, plateau, plain region, then we have islands, then we have lake, we have river, we have what we say peninsula, we have isthmus, then we have what strait, we have island. All this we'll study here in this lesson. This is the rough diagram is given here children. You can just draw it also, and this is a activity also for you in the notebook children. So now we begin with the lesson, page 168 children. The earth's crust, मतलब जो earth का ऊपर का जो portion है, that is called as a crust, and the upper of the mantle in the interior of the earth is known as lithosphere. lithosphere कहाँ तक है? जो आपको क्रस्ट दिखाई देता है, जहाँ पर हमारे प्लांट्स रहते हैं, उगते हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द अर्थ्स क्रस्ट. एंड बिलो द अर्थ्स क्रस्ट इज द अपर मेंटल, मेंटल का ऊपर वाला पार्ट, MANTLE, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन ज्योग्राफी लेसन नंबर 5. टुगेदर इट इज नोन, इट वॉज लिथोस्फियर. दैट आपको मैंने पिछले लेसन में बताया था, 4 रियाम्स ऑफ द अर्थ, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर एंड बायोस्फियर. तो लिथोस्फियर का जो ऊपर का पोर्शन है, लिथोस्फियर का जो पोर्शन है, दैट इज द क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल. About 71% of the lithosphere is covered with water and only 29% is land. So remember this children, earth is called a blue planet because 71% of the lithosphere is covered with water and 29 is only land. That is why earth is called blue planet. The sea floor, like the land surface, is rugged at one place and flat at the another. So the sea floor, जो ocean के नीचे का जो पानी है, that is called as the sea floor. The landforms found on the sea floor आर नेम डिफरेंटली फ्रॉम दोज फाउंड ऑन द लैंड सरफेस. तो मतलब ऊपर जो हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग माउंटेन, प्लेटो वगैरह बोलते हैं, जिसको हम लोग लैंड फॉर्म बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंटली नेम आर कॉल्ड एज व्हाट फॉर द ओशन फ्लोर, दे आर कॉल्ड एज ओशनिक रीजेस. मतलब ओशन के नीचे भी पूरी माउंटेन रेंज है. जैसे आपको ज़मीन के ऊपर पूरे माउंटेन्स दिखते हैं, हिल्स दिखते हैं,
और वैसे ही ओशन के अंदर, पानी के अंदर भी ओशन फ्लोर से स्टार्ट होते हुए पूरी एक माउंटेन रेंज होते हैं, उसको बोलते हैं ओशियनिक रिजेस. उसका आगे हम लोग डायग्राम करेंगे. द अदर मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन द सी फ्लोर आर सी माउंट. ये सब हम लोग अंदर आगे के आपके पेज में देखेंगे. ईयर विल ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो. सी माउंट, abyssal plain and oceanic basins. These are the different names of landforms on the ocean floor. Landforms, that is a topography of the ocean floor. अलग अलग नाम क्या है? Oceanic ridges, mount, sea mount, abyssal plains and oceanic basins. Okay, now come on page 169 children. Now we will see your one info paper box is there. What is the meaning of geomorphology? Geomorphology का क्या मतलब है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ जियोग्राफी. ये जियोग्राफी का एक ब्रांच है. जियोग्राफी जो हम लोग सब्जेक्ट करते हैं उसका एक ब्रांच है. दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड द ओशन फ्लोर्स. मतलब जो अर्थ्स क्रस्ट के जितना भी नेचुरल फीचर्स है उसकी स्टडी करता है, या ओशन फ्लोर्स के ऊपर जितने भी फीचर्स है, नेचुरल फीचर्स है, उसकी स्टडी करता है. दैट इज कॉल्ड एज वॉट? जियोमॉर्फोलॉजी. जियो मीन्स अर्थ एंड मॉर्फो मीन्स लैंड फॉर्म. ओके, नाउ विल स्टडी विद टॉपोग्राफी ऑफ लैंड. The topography of the land differs due to various processes acting on it. The word topography refers to both natural features on the land and ocean floor. So topography का मतलब खाली लैंड के ऊपर दिखते हैं फीचर्स वो ही नहीं, ओशन फ्लोर के ऊपर भी जितने फीचर्स दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टोपोग्राफी. There are two main geomorphic processes responsible for the formation of landforms on the sea floor and on the land surface. So two main processes, दो प्रोसेस के वजह से ये पूरे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं. एक दिन में नहीं बनते माउंटेन, एक दिन में प्लेटो नहीं बनते. इट टेक्स अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स, बट दिस प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन स्लोली. Every day the internal processes and external processes are going on, children, and because of that, after a million of years or after 1,000 of years, we can see a different landform on the earth, or we can see a different landform on the ocean floor. This is because of two processes which is called as internal process and external process. So now we will study about the two processes, internal process and external process. ये रोज होता है, एवरी डे. जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, वैसे ये प्रोसेसेस डेली होते हैं. लेकिन अपने को उसका इफेक्ट कब दिखाई देता है? आफ्टर अ लॉन्ग टर्म, जैसे हज़ारों साल के बाद आपको उसका इफेक्ट दिखाई देगा. सो नाउ वी बिगिन विद द फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म. किसकी वजह से होता है? इंटरनल प्रोसेस. व्हाट इज इंटरनल प्रोसेस? द प्रोसेस इज कॉज्ड बाय द अर्थ्स इंटरनल हीट एंड प्रेशर. देखो, अर्थ के जो नीचे का क्रस्ट और मेंटल और सब कोर है ना, देयर इज एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर. So because of that, there is a extreme pressure created below the earth's surface, and this is called as what? Internal process. Like the earthquake होता है, volcanic activity होती है, सब because of the earth's temperature. अर्थ का जो नीचे का टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, टेम्परेचर राइज, और उसकी वजह से प्रेशर इफेक्ट होता है, और उस प्रेशर की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं. दिस प्रोसेस में कॉज द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सब्सिडियंस और द सब्सिडियंस ऑफ द अर्थ सर्फेस. दो हो सकता है, या तो जो नीचे का पोर्शन ऊपर आ जाएगा, या माउंटेन होगा वो नीचे चला जाएगा. दोनों होता है. ये इंटरनल प्रोसेस की वजह से, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, उसकी वजह से लैंडफॉर्म चेंज हो सकता है. क्या हो सकता है? या तो वो अपलिफ्ट हो जाएगा, अपलिफ्ट यानी वो माउंटेन का शेप ले लेगा, या तो वो वैली का शेप ले लेगा, सब्सिडियंस हो जाएगा. मेजर लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, याद रखना, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स? माउंटेन रेंजेस, प्लेटोज एंड प्लेन्स ऑन द लैंड सरफेस and oceanic ridges on the ocean floor are formed by internal process. तो जो भी आपको ज़मीन के ऊपर माउंटेन, प्लेटो, प्लेन दिखता है, that is because of the internal process. और जो भी आपको ओशन फ्लोर के ऊपर ओशनिक रिजेस दिखते हैं, that is because of this internal process. Sometimes molten materials called magma comes out through these cracks and the vent as lava solidifies on the surface. आपने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में. तो वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है? जो नीचे का मॉल्टन रॉक होते हैं उसको बोलते हैं लावा, मैग्मा. और वो मैग्मा जब ऊपर आता है, किसके थ्रू आता है? एक ओपनिंग के थ्रू आता है. दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? वेंट. और जब वो लावा ऊपर आ जाता है, मतलब उसको लावा बोलते हैं, और जब नीचे होता है उसको मैग्मा बोलते हैं. तो जब लावा ऊपर आता है, इट स्प्रेड्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स. तो जब आपने रॉक्स का लेसन पढ़ा होगा, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि रॉक्स कैसे बनते हैं. बिकॉज ऑफ दिस वॉल्केनिक इरप्शन, जो मैग्मा अंदर मॉल्टन रॉक्स के रूप में होता है, जो अंदर लिक्विड रॉक होता है, जो लिक्विड टेम्परेचर, जो वॉल्केनिक इरप्शन इरप्ट होता है, वहाँ से जो ओपनिंग में से जो मैग्मा निकलता है, यानी लावा बाहर आता है, दैट कॉजेस लैंडफॉर्म्स ऑन दी अर्थ.
ओके, जिसके कारण लैंडफॉर्म अपने चेंज होते हैं, मॉडिफाई होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल प्रोसेस. नाउ विल स्टडी अबाउट एक्सटर्नल प्रोसेस. सी पेज 169 चिल्ड्रन. External process takes place due to the various agents of nature like temperature difference. ये ऊपर होता है, टेम्परेचर में फ़र्क आता है, कभी गर्मी कभी ठंडी. वाटर ऊपर से माउंटेन पे से फ्लो होता है, ग्लेशियर बनते हैं, रेन होता है, इतना विंड होता है, एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन, इन सब के वजह से भी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है. दैट दिस आर द एक्सटर्नल प्रोसेस. उससे क्या होता है, दिस कॉज द वेयरिंग डाउन ऑफ लैंडफॉर्म्स. मतलब लैंडफॉर्म्स माउंटेन्स की जो मिट्टी होती है या नीचे आ जाती है, उनके जो टुकड़े होते हैं रॉक्स के, वो कभी कभी सॉइल में बदल जाते हैं. दिस इज कॉल्ड वेयरिंग ऑफ रेनफॉर्म. एंड दिस वेयरिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन. वेदरिंग मतलब जो टूटता है, फिर इरोजन मतलब जो ऊपर की मिट्टी या ऊपर का सरफेस निकल जाता है, और वो सरफेस निकल के कहाँ जाता है, एक जगह पे डिपॉजिट होता है. तो ये 3 प्रोसेस है, ये आपने ऑलरेडी साइंस में पढ़ा होगा. तो ये जो 3 प्रोसेस है, वो ज़्यादा थ्रू प्रोसेस वेदरिंग. वेदरिंग किसके वजह से होता है, एक्सटर्नल एजेंट्स. कौन है एक्सटर्नल एजेंट्स, विंड, फ्लोइंग वाटर, रेन, टेम्परेचर, इन सब की वजह से क्या होता है, वेदरिंग होता है. वेदरिंग मतलब वेदर नहीं, वेदरिंग का मतलब जो आपके रॉक्स होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं, चेंज होते हैं, उनका ऊपर का हिस्सा घिस जाता है, उसको बोलते हैं वेदरिंग. वेदरिंग के साथ साथ क्या होता है, वो मटेरियल इरोड होता है. इरोड होता है यानी ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह पर, और जहाँ पर दूसरे जगह पर जमा होता है उसको बोलते हैं डिपोजिशन. सो दिस आर द 3 टर्म्स, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, जिसके वजह से क्या होता है, ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं चिल्ड्रन. सो मेजर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल प्रोसेसेस आर फ्लड प्लेन्स. क्या बनता है उसके वजह से, एक फ्लड प्लेन बनता है, यू शेप्ड वैलीज एंड डेल्टाज. तो हमने इंटरनल प्रोसेस की वजह से क्या बनते हुए देखा है, माउंटेन रेंजेस, प्लेटोज, प्लेन्स लैंड के ऊपर, और ओशन फ्लोर के ऊपर ओशनिक रिजेस. और एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से लैंड के ऊपर क्या क्या चेंजेस आते हैं, वी कैन सी फ्लड प्लेन्स यानी पूरा प्लेन एरिया फ्लड्स की वजह से. देन यू शेप्ड वैलीज, वैली का जो शेप यू वाला होता है, वी शेप नहीं, यू शेप्ड वैलीज. एंड डेल्टा, डेल्टा मतलब जहाँ पर रिवर का जो एंड होता है, यानी रिवर का जो माउथ होता है, वहाँ पर एक मिट्टी सब जमा होती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेल्टा रीजन. सो सी दिस फ्लो चार्ट चिल्ड्रन. लैंडफॉर्म्स ऑन द लैंड सरफेस. क्या 3 लैंडफॉर्म्स है, मेजर 3 लैंडफॉर्म्स कौन है लैंड के ऊपर, माउंटन, प्लेटोज एंड प्लेन्स. माउंटन के 3 टाइप है, फोल्ड माउंटन, ब्लॉक माउंटन और वॉल्केनिक माउंटन. अभी फोल्ड माउंटन 2 टाइप के हैं, यंग फोल्ड माउंटन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटन. अभी प्लेन्स के भी 3 टाइप है, स्ट्रक्चरल प्लेन मतलब जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हुए हैं, इरोजन की वजह से हुए हैं, और डिपोजिशनल प्लेन्स. रिमेंबर दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लेन्स, एंड द 3 टाइप्स ऑफ प्लेटोज आर intermontane plateau, pigment plateau and continental plateau and lava plateau. So this flow chart you have to draw children. This flow chart you have to draw in your notebook children. I'll just mention in the notebook also this flow chart you have to draw. So remember which are the different landforms on the land. Mountain 3 types, fold, block, volcanic. Fold में भी 2 टाइप, young fold, old fold. प्लेन में कितने टाइप, 3 टाइप, स्ट्रक्चरल, इरोजनल एंड डिपोजिशनल. एंड प्लेटोज में भी 4 टाइप, इंटरमोंटेन, पिगमेंट, कॉन्टिनेंटल एंड लावा. सो अभी हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में आपको आगे पढ़ेंगे. दिस लेसन इज बिग चिल्ड्रन, सो वी विल डिवाइड दिस लेसन इनटू 2 पार्ट्स. आई विल बी सेंडिंग यू 2 वीडियोज चिल्ड्रन. So first I'll be completing the mountain part. So major landforms. The major landforms on the earth's surface can be broadly classified as 3 types: mountains, plateaus, plains, and these are subdivided into various groups. Now first we'll study about mountains, and the remaining video will study about the other topics, because a big video I will not be able to send children. See big video then you will also not listen properly. So 20 minutes के हम लोग 2 वीडियो भेजेंगे. Okay children. So what is a mountain? एनी नेचुरल एलिवेशन. एलिवेशन मतलब हाइट पे जो होते हैं लैंड, ऊपर जो उठा हुआ लैंड होता है उसको बोलते हैं एलिवेशन. एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस विद अ पीक स्मॉलर इन प्रपोर्शन टू इट्स बेस. मतलब पीक मतलब टोच, माउंटेन का ऊपर का जो भाग होता है वो कैसा होता है, ऊपर से छोटा होता है यानी नैरो होता है, और नीचे से वो उसका जो बेस होता है माउंटेन का, जो नीचे फुट माउंटेन होता है वो बड़ा होता है. तो ऐसा जो शेप होता है उसको बोलते हैं माउंटेन. अगेन आई विल रीड. एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस विद अ पीक स्मॉलर इन प्रपोर्शन टू इट्स बेस इज कॉल्ड एज अ माउंटेन. इट राइजेस मोर और लेस एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया. मतलब लेस या तो मोर, मतलब या तो बहुत बड़ा होगा माउंटेन या छोटा छोटा होगा. एब्रप्टली मतलब एक साथ में आपको दिखाई देगा कि अरे ये तो माउंटेन है.
ऐसा अलग से ही उसका फीचर दिखाई देगा कि उठा हुआ, बाजू के लैंड से थोड़ा ऊपर उठा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, माउंटेन. It rises more or less abruptly from the surrounding area, and because of these variations on the land surface, the definition of a mountain in terms of its elevation varies from one region to another. कहाँ पर उसको हिल भी बोलते हैं अगर उसकी हाइट छोटी होती है, और कहाँ पर उसको बोलते हैं माउंटेन. फॉर इंस्टेंस, in South Asia, sorry, not seven, in South Asia, any elevation exceeding 600 meter above sea level is termed as a mountain. मतलब साउथ एशिया में अगर जो 600 मीटर के ऊपर है, किससे कैसे काउंट करने का, सी लेवल के ऊपर 600 मीटर तक जो जाता है उस लैंडफॉर्म को बोलते हैं माउंटेन. हमेशा देखो माउंटेन होता है ना, उसको सी लेवल से ही मेजर होता है. सी लेवल से कितना ऊपर, आप कोई भी रेलवे स्टेशन पे देखो या कोई भी स्टेशन का डिस्क्रिप्शन देखा हो, वहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे इतना सेंटीमीटर अबाउ द सी लेवल, इतने मीटर्स अबाउ द सी लेवल. तो सी लेवल के ऊपर जितना होगा उस हिसाब से माउंटेन का डेफिनेशन होगा. बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन, माउंटेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स: फोल्ड माउंटेन, ब्लैक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन. नाउ फोल्ड माउंटेन, माउंटेन जिस तरह से बने हैं, मैंने आपको बताया था इंटरनल प्रोसेस की वजह से माउंटेन बने. तो माउंटेन जो बने उसकी जो प्रोसेस इंटरनल है, तो उसकी वजह से अलग अलग फॉर्म हुए माउंटेन को. तो दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड एज फोल्ड माउंटेन्स. व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, अब ये प्लेट कहाँ से आई, प्लेट आर द टेक्टोनिक प्लेट्स. मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि जो नीचे जो प्लेट्स होती है बेटा, जो चिल्ड्रन, अर्थ क्रस्ट के नीचे हर एक लैंडफॉर्म एक एक प्लेट के ऊपर है, वो प्लेट के ऊपर डिपेंड करता है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेक्टोनिक प्लेट्स. व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, यानी दो प्लेट्स जब आपस में टकराती है, द रॉक स्ट्रेटा ऑफ द अर्थ सरफेस is uplifted by the horizontal और compressional forces acting in the opposite direction. मतलब जो फोर्स आते हैं नीचे की प्लेट जब एक दूसरे से टकराती है, उसके वजह से जो बाहर से दोनों तरफ से जो फोर्स आते हैं उसके वजह से प्लेट्स ज़मीन को, क्रस्ट को ऊपर उठा देती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सच मूवमेंट्स टेक्स प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. सी, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. वी विल नॉट नोटिस कि अभी अपने नीचे कौन सी प्लेट हिल रही है, अपने नीचे कौन सी प्लेट कोलाइड हो रही है. दैट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस चिल्ड्रन. ये आपको फोल्ड माउंटेन का डायग्राम है नीचे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी. Such movements takes place from time to time. The mountains built by these processes are called as fold mountains. Sometimes they are built in a series of parallel chains. Sometimes वो पूरे चेन में बन जाते हैं. चेन मतलब माउंटेन की एक पूरी कड़ी बनती है. देखो जब आप कोई भी एक क्या बोलते हो, नेचुरल ब्यूटी का जब आप ड्राइंग बनाते हो तो आप पूरा एक माउंटेन नहीं बनाते हो, माउंटेन की पूरी चेन बनाते हो. दैट इज कॉल्ड एज माउंटेन रेंज. बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन, These are subdivided into young fold mountains और old fold mountains. मतलब ये माउंटेन कितने साल पहले बना है, 5000 साल पहले बना है, 10,000 साल पहले बना है. Depending on them, that is called as what, young fold mountains और old fold mountains. Now we will see this diagram children. See, दो प्लेट्स है, you can see here, दो प्लेट्स के टकराने की वजह से जो ज़मीन ऊपर उड़ गई है, that is called as what, fold mountain. What is it called, fold mountain. उसका प्रेशर दोनों तरफ से आ रहा है. देखो दो एरो आपको रेड कलर की दिख रही है चिल्ड्रन. See here, you can see the arrow children. I have not turned the page. Now I have turned the page. You can go through on page 170. Sorry, I did not turn the page. See the fold mountains, जो red arrow दिख रहे हैं वो प्रेशर आ रहा है, मतलब जो उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है. एंड द टू प्लेट्स कोलाइड विथ ईच अदर. ओके. और दिस माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, इन्फो पेबल बॉक्स में दिया हुआ है. दिस माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, जो ये माउंटेन बनते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑरोगेनी. क्या बोलते हैं उसको, ऑरोगेनी. सो गो थ्रू दिस पेज नाउ अगेन चिल्ड्रन. सो अभी तक हमने देखा कि माउंटेन्स का, माउंटेन का डेफिनेशन क्या है, माउंटेन कितने टाइप्स के हैं. एंड नाउ वी विल डील विद द फर्स्ट फोल्ड माउंटेन, जिसको बोलेंगे यंग फोल्ड माउंटेन्स. द यंग फोल्ड माउंटेन्स वर बिल्ट अबाउट 80 million to 150 million years ago. सी नॉट 1000, आई जस्ट टोल्ड 1000 जस्ट नाउ, इट इज़ मिलियन ईयर्स. जो 80 मिलियन साल पहले बने उसको बोलते हैं यंग. उसको अभी उसको यंग बोल रहे, तो पता नहीं ओल्ड किसको बोलेंगे. सी हियर, द हिमालयास, जो अपने हिमालय माउंटेन इन द साउथ एशिया, the Alps in Europe, the Andes in South America and the Rocky Mountains in North America are young fold mountains. जो आपको मैंने पिछले लेसन में बताया था कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट माउंटेन्स है. सो ये सब जो माउंटेन्स के नाम आपको रिपीट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यंग फोल्ड माउंटेन्स. बिकॉज ये कितने साल पहले बने, या तो 80 मिलियन ईयर्स अगो या 150 मिलियन ईयर्स अगो. द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस इज अ कंटिन्यूस वन एंड एज अ रिजल्ट द हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग. सी, अभी तक हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है, बिकॉज अभी भी वो प्रोसेस में है, वो कंटिन्यू वो प्रोसेस चलता है. आपको दिखाई नहीं देगा, आपको वो दिखाई भी नहीं देगा कि हिमालय बढ़ रहा है कि छोटा हो रहा है. नो, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. अभी अपने वो ध्यान में नहीं आएगा. माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द अपर हिमालय. सो यू नो, एवरीवन नोज दैट माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द लैंड. पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक चिल्ड्रन. सो दे आर स्टिल राइजिंग, और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी
थोड़े सालों के बाद और भी थोड़ी थोड़ी मीटर्स में बढ़ती जाएगी. सो नाउ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन. क्या है अभी फोल्ड माउंटेन का दूसरा वेराइटी? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. दिस आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस इन देयर रिस्पेक्ट हैज पॉज्ड. अभी सबसे ओल्डेस्ट है, नहीं अभी ये माउंटेन बन गए तो बन गए, अब इसकी हाइट बढ़ेगी नहीं. जबकि यंग फोल्ड माउंटेन्स किसको बोलेंगे? जिसकी हाइट अभी भी बढ़ सकती है, बिकॉज दे आर इन प्रोसेस स्टिल नाउ. इंस्टेड दे हैव डिक्रीज इन हाइट. मतलब हो सकता है कि एक्सटर्नल, अब उन लोग बढ़ना तो बंद हो गए इंटरनल प्रोसेस की वजह से, तो अब वो डिक्रीज हो रहे हैं. कैसे डिक्रीज हो रहे हैं? बिकॉज उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रोसेस एक्ट हो रहे हैं. क्या हो रहा है उसके ऊपर? वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है. उसकी वजह से उनके प्रोसेस, ये वेदरिंग और इरोजन की वजह से शायद माउंटेन की हाइट कम होती जा रही है. इंस्टेंट दे हैव डिक्रीज इन हाइट बाय एक्सटर्नल प्रोसेस लाइक वेदरिंग एंड इरोजन. दिस माउंटेन्स आर स्टैंडिंग विथ ऑलमोस्ट राउंडेड फीचर्स एज वेल एज लो एलिवेशन. मतलब ये माउंटेन की हाइट भी छोटी है और ऊपर की जो उनकी टोच है वो राउंडेड है, एकदम पॉइंटेड नहीं है. द ओरल्स बिटवीन एशिया एंड यूरोप, द एपेलेचियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द अरावलीज इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. ये सब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट बढ़ना बंद हो गई है बिकॉज उनके इंटरनल प्रोसेस स्टॉप हो गए. लेकिन एक्सटर्नल प्रोसेस जो वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से शायद उनकी हाइट भी छोटी हो रही है एंड उनका ऊपर का जो टॉप्स जो है, पीक है, वो राउंडेड होता जा रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स. फर्स्ट फोल्ड माउंटेन हो गए हमारे दोनों, यंग एंड ओल्ड. नाउ विल गो टू द सेकंड वेराइटी ऑफ माउंटेन, दैट इज अ ब्लॉक माउंटेन. देखो ब्लॉक माउंटेन का भी यहाँ पे फोटो दिख रहा है. These mountains are created when large land masses are broken up by the process of upliftment and subsidence and are displaced vertically. देखो वर्टिकल इसका डिस्प्लेसमेंट होता है. क्या होता है कि अपने आप ये प्रेसिस में ब्रोकन होते हैं, अपलिफ्ट होते हैं या सबसाइड होते हैं और उसके वजह से उन लोग डिस्प्लेस होते हैं वर्टिकली, ऊपर जाके जमा हो रहे हैं. मतलब उन लोग हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस नहीं हो रहे, वर्टिकली डिस्प्लेस हो रहे, जिसके कारण ये माउंटेन बन रहे. This causes some parts of the surface to rise above the surroundings while others parts sink below the surface. The uplifted blocks are called horsts and the lowered blocks are called as ग्रेबन्स. तो देखो हॉर्स्ट और ग्रेबन्स का डेफिनेशन याद कर लो. ब्लॉक माउंटेन जब बनता है तो कितनी बार वो अपलिफ्ट होता है. जब अपलिफ्ट होता है वो एरिया को बोलते हैं होस्ट, मतलब अपनी सराउंडिंग एरिया से लोग ऊपर उठ रहे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? होस्ट. एंड जो लोअर ब्लॉक जो बच जाते हैं साइड पे, छोटे जो लोअर ब्लॉक्स बन जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज ग्रेबन्स. सो देखो ये डायग्राम यू कैन सी ऑन पेज 170. होस्ट, ये माउंटेन वर्टिकल जो नीचे का जो प्रोसेस देखो, जो ऊपर उठ रहा है उसको बोल रहे हैं अपलिफ्टमेंट, और जो नीचे का एरो आपको दिख रहा है सबसिडेंस. तो कुछ अपलिफ्टमेंट हो रहा है, कुछ सबसिडेंस हो रहा है. तो जो अपलिफ्ट हो रहा है उसको बोलेंगे होस्ट और जो सबसाइड हो रहा है, नीचे हो रहा है, उसको बोलेंगे ग्रेबन्स. नाउ कम ऑन पेज 171 चिल्ड्रन. द ब्लॉक माउंटेन्स हैव अनड्यूलेटिंग टॉप्स एंड स्टीप स्लोप्स. मतलब उन लोग की टॉप्स कैसी है? अनड्यूलेटिंग. अनड्यूलेटिंग मतलब कुछ भी पॉइंटेड वगैरह नहीं है. एंड दे हैव अनड्यूलेटिंग व्हाट वी से टॉप्स एंड स्टीप स्लोप. स्टीप स्लोप मतलब एकदम स्ट्रेट. वो माउंटेन्स जरा भी ऐसे आपके क्या बोलते हैं, स्लोप में नहीं होंगे. उन लोग का एकदम स्टीप होगा, एकदम स्ट्रेट स्लोप होगा, उसको बोलेंगे स्टीप स्लोप्स. और जो फोल्ड माउंटेन्स हैं उनके शेप थोड़े कैसे होंगे? ऐसे उल्टा वी जैसा होंगे. ओके, सो दैट इज़ वो फोल्ड माउंटेन्स का है. और ये ब्लॉक माउंटेन्स का स्लोप कैसा होगा? एकदम सीधा स्लोप. आपको दिख रहा है डायग्राम में ब्लॉक माउंटेन है. इसके एग्जाम्पल क्या है? द राइन वैली एंड द वॉस्जस इन यूरोप and Sierra Nevada in California, USA are examples of block mountain. These are the examples of block mountain, children. Okay. Now the third type of mountain is what? Volcanic mountains. So now these are formed by the accumulation and solidification of lava. मैंने आपको भी बताया था कि जब लावा बाहर निकलता है, मतलब मैग्मा बाहर निकलता है, उसको लावा बोलते हैं. और जब लावा एक के ऊपर एक जमा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, लावा जब लिक्विड जब बाहर निकलता है तब वो बाहर आके कूल होकर सॉलिडिफाई होता है. दैट इज फॉर्म्ड एज व्हाट? माउंटेन. दिस लावा एक्यूमुलेट्स अराउंड द वेंट ऑफ अ वॉल्केनो. वॉल्केनो का वेंट जो होता है उसको बोलते हैं, ओपनिंग जो होता है उसको बोलते हैं वेंट. तो वहाँ पर चारों तरफ एक पूरा ट्राइंगल शेप ही होता है वो माउंटेन. एक्चुअली वॉल्केनिक इरप्शन माउंटेन शेप में ही होता है और उसका जो ओपनिंग होता है वो वेंट होता है. तो वहाँ पर जब लावा पूरा बाहर निकलता है, यानी मैग्मा पूरा बाहर निकलता है, तो लावा कहाँ एक्यूमुलेट होता है? उसके आजू बाजू. तो वो शेप कैसा हो जाता है? माउंटेन जैसा होता है. द लावा फॉर्म्स लेयर अपॉन लेयर विच गिव्स राइज टू माउंटेन्स. इसके वजह से क्या बनता है? माउंटेन. अभी आपने ये सब नाम सुने ही होंगे. माउंट किलिमांजारो इन अफ्रीका, माउंट फुजियामा इन जापान, माउंट एटना and Mount Vesuvius in Italy and Mount Rainier in USA are examples of volcanic mountains. मतलब जहाँ पर volcanic eruptions हुए थे उनके ओपनिंग में से, यानी ओपनिंग यानी वेंट जो होता है वो, दैट इज़ अ
माउंटेन फॉर्म जैसा ही होता है ऊपर ओपनिंग, उसमें से जो लावा निकलता है वो जब धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है, एक दूसरे के ऊपर वो जमा होता है, इट टेक्स द शेप ऑफ अ माउंटेन. सो दीज आर द वॉल्केनिक माउंटेन्स. नाउ वी विल स्टडी के ये माउंटेन्स अपने को क्या यूज़ के हैं. माउंटेन्स तो है, लैंडफॉर्म्स तो आपने बहुत जगह पर माउंटेन्स देखे होंगे, आपने माउंटेन्स ड्रॉ भी किए होंगे. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस माउंटेन. यू कैन सी द डायग्राम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन. So what are the uses of mountain, and what is it is a very great value to man, children. Although being formed naturally, mountains are of great value to man. The various uses of mountains are, see the various uses of mountains. First use, mountains are a storehouse of water. मतलब mountain, कितने सारे रिवर्स की शुरुआत माउंटेन पे से होती है. माउंटेन के ऊपर ग्लेशियर होते हैं, वो ग्लेशियर पिघल कर उसका पानी जब नीचे आता है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ रिवर. और ये रिवर ऐसे होते हैं, या दे आर कॉल्ड एज पेरेनियल रिवर्स, मतलब उनका पानी कभी भी ड्राई अप नहीं होता है. कितने रिवर्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, ओनली देयर वाटर इज सीन इन द रेनी सीजन. लेकिन ये जो माउंटेन पे से जो रिवर शुरुआत होते हैं, लाइक द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनके रिवर्स का पानी कभी भी सूखता नहीं है. दे आर कॉल्ड एज व्हाट, पेरेनियल रिवर्स. एंड उन लोग को हमेशा पानी रहता है उसमें. पेरेनियल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हाई माउंटेन ग्लेशियर्स प्रोवाइड वाटर. सेकेंड, माउंटेन आर अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स. यानी माउंटेन पे से अलग अलग टाइप के हम लोग मिनरल्स को माइन कर सकते हैं. माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स, विच एनहेंस द सीनिक ब्यूटी. आज आप लोग हिल स्टेशन वगैरह घूमने आते हो बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स. ड्यू टू देयर एलिवेशंस, माउंटेन्स प्रूव आइडियल साइट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स टू ड्वेल हाइड्रो पावर. यानी जो वाटर में से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको बोलते हैं हाइड्रो पावर. सो माउंटेन्स की हाइट और एलिवेशन, एलिवेशन मतलब हाइट की वजह से जो पानी वहाँ से गिरता है, वाटरफॉल होता है, वहाँ से हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो पावर. एंड दे आर, वहाँ पे डैम्स को इजीली कंस्ट्रक्ट करके वहाँ से पानी जो फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड, उसमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. द स्लोप ऑफ माउंटेन है, जो माउंटेन का जो स्लोप होता है, माउंटेन की जो ढलांग होती है, वहाँ पर होते हैं डेंस फॉरेस्ट विच प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. और ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रबर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड सो मैनी यूजेस ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हनी एंड एवरीथिंग. सॉरी, नॉट हनी, बट what we say, medicinal plants, rubber, gum, resin, all that. In India, the Himalaya act as a protective barrier against the dry and cold polar winds. अगर हिमालय माउंटेन नहीं होता है तो इंडिया पूरा फ्रोजन हो जाता है विंटर में. बट बिकॉज हिमालयन माउंटेन्स आर देयर, ये माउंटेन्स किसको रोक लेते हैं, बाहर से आने वाली जो पोलर विंड्स होती है, मतलब नॉर्थ में से जो आने वाली पोलर विंड होती है उसको रोकते हैं. दैट इज़ वाई द टेम्परेचर ऑफ इंडिया इज़ कंट्रोल्ड. ये तो हिमालय का एग्जाम्पल इंडिया के लिए. माउंटेन्स हर जगह पर एक्ट एज अ बैरियर, मतलब अपने को प्रोटेक्शन देता है. और साथ साथ में कभी कभी माउंटेन्स दूसरी कंट्री से भी हमें प्रोटेक्शन देता है. ऑन अकाउंट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एलिवेशन, माउंटेन्स हैव कूल क्लाइमेट्स. जितना आप हाइट पे जाओगे वहाँ पे टेम्परेचर उतना कम होगा. इसलिए देखो समर सीजन में लोग हिल स्टेशन पे घूमने आते हैं, बिकॉज एज यू गो अबाउ द माउंटेन्स देयर द टेम्परेचर फॉल्स. सो ऑन अकाउंट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एलिवेशन, माउंटेन्स हैव कूल क्लाइमेट्स ड्यूरिंग समर्स एंड दस आर परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन समर. ज़्यादा करके लोग समर में वहाँ जाते हैं. और वहाँ पे स्पोर्ट्स क्या होता है, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, skiing are the other attractions of this tourist. So I hope you understood till here. We have studied about what, the different landforms. In that we have studied about mountains, the different types of mountains, and the, what we say, the importance of mountains. Also we studied about the landforms of the land surface, किसके वजह से बन रहे, internal process and external process. And in the next video I'll be sending you about the plateaus, I'll be sending you about the plains, about the ocean floor, and about the topography and man. So here I think I will stop on this part 1 of the geography lesson number 6. Second part of the video will continue from the plateaus, children.